Hello friends, today we will discuss about 2.5-month study plan and revision plan for CS Executive, CS Professional, old and new syllabus student. Under this video, we will discuss about how to complete your study and how to complete your 3 times revision with practice. Yes, 3 times revision with practice within 75 days. So please watch this video and please share this video and please subscribe our YouTube channel for CS Executive Old Syllabus student. Okay, your study start 28 September to 11 December, total 75 days. Under 75 days, you will complete your whole syllabus plus 3 times revision with test. So this is your target. If you are group 1 student, old syllabus executive, then this is your target. Every day theory, every day one chapter, and practical within 2 days one chapter. This is your everyday target. If you are group 2 student, this is your target. Theory every day one chapter and practical within 9 days one chapter. Okay, it is so easy task. But if you are both group A students, CS executive all syllabus, then this is your target. Theory every day 1.5 and practical within 2 days one chapter. ओके अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव ऑल सिलेबस के स्टूडेंट हो तो ग्रुप 1 अगर आपका है तो आपको एक दिन में एक चैप्टर थ्योरी और 2 दिन में एक चैप्टर प्रैक्टिकल कंप्लीट करना होगा. दिस इज योर टारगेट. ओके. सेकेंड, अगर आपका ग्रुप 2 है तो आपको एक दिन में एक चैप्टर थ्योरी और 9 डेज में वन चैप्टर प्रैक्टिकल, क्योंकि अकाउंट में बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक होता है, तो इतना टाइम लगेगा. बट अगर आपका बोथ ग्रुप है देन एवरी डे आपको 1.5 चैप्टर 1.5 यानी कि 1.5 चैप्टर कंप्लीट करना होगा और प्रैक्टिकल 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा. दिस इज नॉट बिग टास्क. यस, अगर आप अभी से भी स्टडी करोगे तो अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे. नेक्स्ट, new syllabus student. Okay, so your study start 28 September to 11 December, total 75 days. This is your target. And if you are group 1 student, then your target is every day one chapter theory and practical within 5 days one chapter. If you are group 2 student, executive new syllabus, then your theory target is within 2 days one chapter, your practical target within 2 days one chapter. Same. Okay, but if you are both group student CS executive new syllabus, then your target is within 3 days 4 chapter and practical within 3 days 2 chapter. This is your target. अगर आप CS executive new syllabus के स्टूडेंट हो तो आपका टारगेट क्या होगा? थ्योरी एवरी डे वन चैप्टर आपको कंप्लीट करना होगा और प्रैक्टिकल 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा. बहुत ही छोटा सा टास्क ही है. अगर आपका ग्रुप 2 है तो 2 दिन में एक चैप्टर थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 दिन में एक चैप्टर. ओके. अगर आपका बोथ ग्रुप है तो 3 दिन में 4 चैप्टर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है. इट इज पॉसिबल, यस पॉसिबल. एंड प्रैक्टिकल 3 दिन में 2 चैप्टर करना है. थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क है, एक्स्ट्रा टाइम देके आप कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि अभी हमारे पास 80 डेज ही बचे हुए हैं. हमने 75 डेज को लेके चला है क्योंकि 75 डेज में आपके 3 रिवीजन भी होंगे. अगर आपका सी एस प्रोफेशनल है, इफ यू आर सी एस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट, देन you will start your study 28 September to 11 December, 75 days total. For group 1 student, your everyday target is one chapter, only one chapter. For group 2 student, your everyday target is half chapter. For group 3 student, your everyday target within 3 days one chapter. But if you are all group student, then within 2 days complete 3 chapter. This is your target. अगर आप CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो तो आपका टारगेट क्या होगा? आपको एवरी डे वन चैप्टर कंप्लीट करने होंगे अगर ग्रुप 1 है तो. अगर ग्रुप 2 है तो हाफ चैप्टर, ग्रुप 3 है तो 3 दिन में एक चैप्टर, अगर ऑल ग्रुप है तो 2 दिन में 3 चैप्टर. सपोज कि आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है तो कितना टारगेट होगा? तो इसी के लिए हम आपको सिर्फ ये डाटा ही नहीं देंगे, वी विल आल्सो गिव यू स्टडी शेड्यूल. ओके, दिस इज स्टडी प्लान बट आल्सो आई विल गिव यू स्टडी शेड्यूल. सो ये स्टडी प्लान मैं आपको बता रहा हूँ और इसके साथ मैं आपको स्टडी शेड्यूल भी बताऊंगा और स्टडी शेड्यूल को भी मैं शेयर कर दूंगा. If you are CS professional new syllabus student, then your target is within 3 days 2 chapter for group 1 student, within 2 days 1 chapter for group 2 student, within
4 days, one chapter for group 3 student. For all group student, your everyday target is one chapter. कितना easy है ना, एक चैप्टर ही आपको कंप्लीट करना और एक चैप्टर में आप कंप्लीट कर लोगे। सॉरी, यहाँ पे एक डाटा में मिस्टेक हो गया है क्योंकि आपके टोटल 116 चैप्टर्स है, 75 डेज ही है। ओके, सो लगभग 1.4 1.5 ही आएगा, मतलब 1.5 चैप्टर आपके आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा आपको देने का टाइम। ओके, मतलब जो टारगेट यहाँ पे इनका था ना, इनका ऑल ग्रुप ओल्ड सिलेबस वाले का सेम ऑल ग्रुप न्यू सिलेबस वालों का भी टारगेट होगा 3 दिन में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल डाटा। ओके, अब इस डाटा के हेल्प से नाउ यू विल एबल टू मेक योर ओन शेड्यूल also, or you can also follow our schedule. With the help of this data you will able to make your own schedule. Okay, if you are not able to follow your schedule, then follow our schedule. I will share our schedule tomorrow on our WhatsApp group, and also we will upload our study schedule on our Android application. If you want any other help, if you want to know more about this, then you can call me. तो इस डाटा के हेल्प से आप चाहो तो अपना शेड्यूल बना सकते हो, या फिर हम शेड्यूल बना के आपको शेयर कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा कि शेड्यूल जो हमने आपके लिए बनाया है उसके क्या फीचर्स होंगे। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द फीचर्स इंक्लूडेड अंडर आवर शेड्यूल। सो लेट्स कंटिन्यू. But before this, I want to tell you about some important notification. If you want to join our last batch of mentorship program, then registration is going on. Last date of registration 27 September. Under mentorship program, we will give you target as per our schedule, and we will give you some strategy, we will give you some planning, and that planning will be help you to increase your efficiency, to increase your study hours. Okay, and it is confirmed mentorship program will be help you more. Okay, so must join our mentorship program. Okay, next announcement. So if you want to know more about mentorship program, then click I button or watch the detailed video already uploaded. Watch this video and follow the all process and join our mentorship program. But if you want to join our advanced test series, then registration is going on. Last date of registration 30 September. This is last date of registration 30 September. And if you want to join, then before this register yourself. Okay, under advantage series we will give you 30 plus chapter wise test paper, 24 plus full syllabus test paper, and 90% case study based question and 500 plus important questions included. Okay, and MCQ also. अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 30 सितंबर है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ओके, टेस्ट सीरीज देना क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको भी मालूम है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे जो मिस्टेक ना हो वो आप पहले ही करके अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव कर लो। ओके, उसको खत्म कर दो ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, आपके अच्छे रिजल्ट आ सके। पहली ही मिस्टेक हम लोग आपको बता देंगे, 3 वे में आपके पेपर को एनालाइज किया जाएगा। पहला तो होगा कि आपको पेपर में ही मेंशन रहेगी आपके मिस्टेक। सेकंड, आपको कॉल करके बताया जाएगा आपका मिस्टेक। एंड थर्ड, कि अगर आप टॉप करते हो या फिर आपके कम मार्क्स आते हो तो दोनों सिचुएशन में आपके पेपर पे वीडियो बना के उसको एनालाइज किया जाएगा। ओके, और एमसीक्यू हमारे ऐप के थ्रू रन करेगा, ऐप के थ्रू सेम टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आप हमारे ऐप पे भी जाके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप के कैटलॉग में भी आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। ओके, बाकी का ये जो शेड्यूल है जिसको शेयर किया जाएगा स्टडी शेड्यूल, उसमें भी आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। पहले तो आपको स्टडी प्लान मिलेगा एंड लास्ट में फिर आपका टेस्ट शेड्यूल भी इसमें इंक्लूड है कि कौन से डेट को कौन सा टेस्ट होगा। एंड वन मोर फीचर कि आप किसी भी दिन किसी भी टेस्ट को दे सकते हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, आपको सजेस्टेड आंसर मिलेंगे और आपको एनालाइज करके आपके चेक आंसर शीट भी रिटर्न किए जाएंगे। ओके, और स्टडी शेड्यूल CS Executive New Syllabus. This is your study schedule. This is your data. This is your target data.
and here some short notes tips and memorize tips. And this is the timetable for both group student. Okay, you can follow any time sheet, you can change your time sheet. Okay, total 7 time sheet available, single group student and articleship and job working student. So this is your group 1 study and revision schedule for CS executive new syllabus group 1 student. First revision, revise every day before sleeping whatever you have studied whole day. Second revision after 3 days. Okay, so first revision आपको कब करने हैं? एवरी डे बिफोर स्लीपिंग। आप दिन भर में जितने टॉपिक पढ़ो, जितने आप लेसन पढ़ो, रात को 1-2 घंटे निकाल के उसको क्या करो, रिकॉल। दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन। एंड सेकेंड रिवीजन 1 2 3 4 डेज के बाद यहाँ पे आपका सेकेंड रिवीजन का डेट इंक्लूड है। दिस इज योर सेकेंड रिवीजन डेट। सो क्या रीजन है कि हमने आपको सजेस्ट किया कि स्टडी के साथ ही आप रिवीजन करो? क्योंकि देखो, एक गैप होने के बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग भूल जाते हैं, ये नॉर्मल है। ओके, मैंने स्टडी करने का कंसेप्ट पहले ही बहुत सारे वीडियो में बता दिया कि आप ऐसे करोगे तो नहीं भूलोगे, लेकिन फिर भी सपोज कि अगर उससे आप भूल जाते हो तो ये कंसेप्ट जो कि आपको डेली जो भी दिन भर पढ़ते हो तो रात को आपको रिकॉल करना है, फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड कि 3-4 दिन के बाद आपको सेकेंड रिवीजन करने हैं। ऑलरेडी डेट्स यहाँ पे मेंशन है कि कौन से दिन आपको करने हैं। आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, अगर इसके हेल्प से अपना शेड्यूल भी बना सकते हो। तो जो भी आप भूलोगे वो बैक टू बैक याद रहेगा। ओके, एंड थर्ड रिवीजन इज हेयर। ओके, ये 2 कॉलम थर्ड रिवीजन का है, सेकेंड रिवीजन यहीं पे मेंशन है। ओके, तो थर्ड रिवीजन कैसा है? थर्ड रिवीजन जे लेसन 1 to 8। ओके, remember first revision is deep revision, second revision is fast revision and third revision is super fast revision. ओके, अगर आप इतना कर लेते हो तो एकदम अच्छे मार्क्स आप लाओगे एग्जाम में। ओके, पहले की प्लानिंग होती थी कि ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, बोथ ग्रुप कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवीजन करेंगे, उसके बाद टेस्ट लिखेंगे। दिस इज ओल्ड कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं। एंड दिस इज द परफेक्ट कंसेप्ट। ओके, क्या परफेक्ट कंसेप्ट है कि हम स्टडी के साथ रिवीजन लेके चलेंगे। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया और मैं इसमें भी आपको बता रहा हूँ। आपको जो आप एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के हो, न्यू सिलेबस के हो, प्रोफेशनल ओल्ड के हो, न्यू के हो, आपको मैं शेड्यूल बना के दूंगा। ये शेड्यूल आप देख रहे हो, ये बना हुआ शेड्यूल है। जो डाटा मैंने अभी आपको बताया उस डाटा के बेसिस पे इसको बनाया गया है। सारे लेसन्स को, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से अरेंज किया गया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इजी वे में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ये ग्रुप 1 के लिए है। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे तो ग्रुप 2 का मिलेगा, देन बोथ ग्रुप का मिलेगा, और उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो आपको टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। ओके, सो इसमें क्या है फीचर्स? पहला फीचर्स है कि आपको बताया गया है कि कौन से डेट को आपको क्या पढ़ना है। ओके, सेकेंड आपको बताया गया है कि आपको सेकेंड रिवीजन कौन से डेट को करना है और सेकेंड रिवीजन करके आपको इतने चैप्टर का टेस्ट लिखना है। अब ये टेस्ट कौन प्रोवाइड कराएगा? हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इसके कुछ कॉस्ट है। ओके, कॉस्ट है, आप चाहे तो कहीं और से भी आप बाई कर सकते हो। ओके, क्योंकि पेपर चेक करने में और बहुत सारे खर्चे हमारे आते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट हम लेते हैं। आपको बहुत सारे पेपर हम देते हैं, प्रॉमिस से ज़्यादा पेपर देते हैं, और आपको यहाँ पे बार बार लिखने का भी चांस मिलता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर से हम सजेस्ट करते हैं कि इतने चैप्टर को रिवाइज करके आप फिर से लिखो। ओके, सारी फैसिलिटीज मिलती है। जब तक कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते टेस्ट में, तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। सो इसको मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपकी एक सब्जेक्ट के है, ये दूसरे के है। ये पहला का थर्ड रिवीजन का डेट इसमें रहेगा, एंड ये दूसरे सब्जेक्ट का थर्ड रिवीजन का रहेगा। सेकेंड रिवीजन का यहीं पे मेंशन है कि आपको कब करना है। ये सेम हर जगह पे किया गया है। एंड अगर आप देखो तो सेम आपको प्रोफेशनल में भी मिल, CS प्रोफेशनल में भी आपको मिल जाएंगे। ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अगर आपका ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 3 है तो आप इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। अगर आपका ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 2 है तो इसको फॉलो करो। ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 3 है तो इसको फॉलो करो। इस तरह से अरेंज किया गया है कि सारे स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये कि इजी वे में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो, 75 डेज का मैंने टारगेट दिया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अचीव करते हो तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और पास भी आप कर जाओगे। तो जितना इंपॉर्टेंट स्टडी करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना।
आप टेस्ट बाय करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट बाय नहीं कर सकते हो तो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, हर लेसन के पीछे क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करो। बट उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो चेक नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे, क्योंकि हमारे चेक करने का व्यू अलग होता है और आपके चेक करने का अलग व्यू होता है। तो ये सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए है। सारे शेड्यूल को शेयर किया जाएगा कल। आप हमारे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम में इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, और क्या उसके प्रोसेस होते हैं। आई बटन को क्लिक करके आपको वीडियो को देख लो कि कौन कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना है मेंटरशिप प्रोग्राम में। रिमेंबर कि काफ़ी सोच समझ के सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। अगर आप फॉलो करते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ओके, मेरा काम था हेल्प करना, मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्टडी अच्छे से करें। बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो रिमेंबर कि कोई कब तक आपको मोटिवेट करेगा। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, सो मोटिवेट योर सेल्फ एवरी डे। कैसे मोटिवेट करें? तो आप खुद सोचो कि आप क्या करने आए हो। क्या आप यहाँ जीने आए हो, मरने के लिए जी रहे हो, या फिर लाइफ को एंजॉय करने के लिए? जिंदगी काटनी नहीं है। ओके, रिमेम्बर, जिंदगी काटनी नहीं है, हमें अच्छी लाइफ जीनी है, अपनी फैमिली को भी अच्छा लाइफ देना है। अभी बेड पे लेट के मोबाइल देखना, टीवी देखना, मूवी देखना और घूमना, ये लाइफ नहीं है। ओके, अच्छी लाइफ जब आप इनकम करोगे उसके बाद आपकी अच्छी लाइफ स्टार्ट होगी, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, मैंने आपको प्लानिंग बता दी है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, आप मुझे कॉल करो। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ऑप्शन है कि आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उससे भी नहीं होता है तो आप हमें कॉल करो। पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कैसा भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे शेयर करो। उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको फिर से स्टडी करने में हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, पूरी सपोर्ट दी जाएगी। रिमेंबर कि ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी मालूम है कि स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है और हर हेल्प के लिए कोई चार्ज नहीं होती है। ओके, हमारा और आपका रिलेशनशिप पैसों से बढ़ के। प्रॉब्लम शेयर कीजिए तभी हम हेल्प कर पाएँगे, नहीं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। ओके, सो इस शेड्यूल में मैंने बता दिया कि क्या-क्या फीचर्स है। रिमेंबर कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करो या ना करो, बट इस शेड्यूल की हेल्प से आप चाहो तो अपना शेड्यूल भी बना सकते हो। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके अकॉर्डिंग रिवीजन कर लो। तो ये एक परफेक्ट शेड्यूल है। सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड एंड न्यू सिलेबस सारे स्टूडेंट के लिए कल शेयर किया जाएगा। लास्ट में मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखो, एग्जाम होंगे, एग्जाम कंफर्म है कि होंगे, 100% होंगे। एंड ना तो टफ क्वेश्चन आएगा, ना ही इजी क्वेश्चन आएगा, सब कंसेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, और ना ही कोई कंपटीशन होता है। रिजल्ट उतना ही आता है, क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 100 स्टूडेंट अगर इनरोल करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है CA CA CMA कोर्स में, तो आउट ऑफ 100 सिर्फ 50 स्टूडेंट सीरियस होते हैं। 50 तो बस टाइम पास के लिए हो जाते हैं, जो साइड हो जाते हैं। अब आउट ऑफ 50 में से क्या होता है, कि उसमें से आप मान लो कि 25% या 30% स्टूडेंट कोई MBA करने लगता है, कोई LLB करने लगता है। तो जो भी बचते हैं ना स्टूडेंट, वो 20% ही बचते हैं, और 20% में से 10-11% तो रिजल्ट आते हैं, 10-11%। तो रिजल्ट कम नहीं आता है, आपको डिमोटिवेट किया जाता है। आपको वो लोग आके बोलते हैं कि नहीं होगा भाई तुमसे, मेरे से नहीं हुआ, तुमसे भी नहीं हुआ, वो बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में डाटा कुछ और है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन रिजल्ट आने के लिए आपको स्टडी करना होगा। रिमेंबर, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, कंसेप्ट को समझो। जब आप कंसेप्ट को समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब है कि उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है बुक में, चाहे लॉ हो, अकाउंट हो, ऑडिट हो, तो उसका कोई मतलब है। आपको फ्यूचर में उस पर वर्क करना होगा, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है। एक बार आपके पास नॉलेज होगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, जो डिफिकल्टीज और जिस टाइप का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में फेस करना होगा, उसके लिए आप टेस्ट लिखो, टेस्ट ज्वाइन करो। हमारा लास्ट बैच भी स्टार्ट होने वाला है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो जब आप टेस्ट ज्वाइन करोगे तो उस प्रॉब्लम को यहाँ फेस करोगे। हम आपके प्रॉब्लम को ट्रेस करके उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर पाएंगे। ओके, सो आप अपना स्टडी स्टार्ट करो। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो।
Okay, see you soon.